So checking the any DB size using the SP underscore help DB. It's a system defined store procedure which give the information regarding a DB name, DB size, who is creating this DB owner, कौन इस DB का owner, DB ID, created date, status और updatability, read write है या read only DB है, that is compatibility labels like Okay. 2012 है, 2014 है, 2016 है, which are compatibility. How many DB file have? Here only 2 data file. Can you mute? Can you mute, please? Somebody, I think I get some voice from. Yeah, Bhavika, your side noise, so I will mute. Okay. So I mute. If need, then you can unmute itself. So this is the information, getting the any DB information, any DB like a system, master model, MSDB, which is going to be where the location of DB file currently. My adventure work in the C drive, default location this, and I want to get information temp DB for. Can you mute? So this will be unnecessary voice will be a unnecessary voice will be a recording now this, so that's why I will be thinking. You when you ask question, then you can unmute now, or you can move to other place like a room that no noise. So this way we are getting the 9 DB file. How can 9? Can you anyone tell me why they create 9 DB file? My core will be 8. My core will be 8 core but 9 file. Anyone give me the justification why it's 9 file? The first when we create the temp means it's created, it has a MDF and LDF log file and Okay. remaining temp files or a dev. Remaining is the, can you little bit, can you give me idea how many NDF file or MDF file creating in TempDB? Can you idea my core? Suppose your laptop have 4 core. For example, I will be giving this is the my core will be a processor. Okay. My core will be 8 0 so 8, but for example your laptop have a 4 core or 12 core or 16 core, whatever your core. So how many temp DB creating? Anyone tell me? It is n-1, right? No, not n minus 1. I tell you, basically we have creating the total 8 file. If my core will be 8, then you create 8 file. 1 is the log file. Now 8 is the data file. Temp, deb, this is the primary data file. I tell you that day. 1 is the primary data file. That's the extension .mdf. This is the LDF file. This is the NDF file. These are my secondary data file. Na? Yes. So my core will be 4, or then we create 4 core NDF file. Okay. Yes. For example, 4 MDF or NDF include 1 MDF, 3 NDF file. Now my core will be 8, so 1 MDF and 7 will be added. 2 starting 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understand? Yes. So that's why 7 total 8 data file will be creating 1 MDF and 7 NDF file. 1 is the log file. Na? Every database have 2 file. 1 is the data file and log file. Suppose, for example, I have picked this DB, and this DB I have not created much file. Only I will be creating the SP underscore
So here I am not creating the multiple data files. So default two file creating na, as per the nature. One is the MDF file, one is the LDF file. But at the time of installation, I have also configured the MDF file number of file. By default it will be 8, but if we change then we can change also. Okay. Okay. और if you want to change right now, फाइल लास्टली हम रख सकते हैं सर? it's a totally depending your suppose I want to create a one MDF file in this database, or I want to create a tempdb file in this database. Right click, property. Can you tell me how to create a one MDF file? I have already tell the NDF file. So can you tell me where I can go to here? Tell me. Files. Okay. Add. Okay. Temp. Temp, for example, TEMP temp 9. Yes, 9. Okay. And this Suppose will be. If I select log, then that would be a log file, but NDF is a secondary data file, right? yes. So which I select, row or log? Okay. Then here primary. Okay. Okay. So suppose for example I tell you one real-time example. Now my default all the NDF file or MDF file creating in C drive. If I want to change my 9th MDF file will be creating different drive, then I can create this MDF file in different drive. Okay. Okay. So I am giving just this example. So that's why I will be thinking. So first I tell you how to move a temp DB to move a temp DB. Not. Just give me 1 minute. Move to this. Oh, sorry. I am also taking care of script here now. I have already put. I have already shared to the morning batch, so that's why download temp DB movement. There are 2 steps. It's a very easy step, and go to here. I tell you. First step, you find the your tempdb path and alternative alter command. How to generate alter command? You just put here, suppose I want to move this file into D drive or E drive. Yes. In case I have put here D location, D drive, E drive. For example, my laptop have a only demo DB. Okay. So I want to my temp DB file, all the temp DB file for this location. So I put this. Okay. And I also put this. Okay. So that's why we are getting the all the temp DB. This is the run first this. So it's giving the temp DB location. You go this way. Okay. After that, you select this all and click query. Okay, and run this simply. Nothing you have to do it. Okay. Yes. So I have done this. All the temp DB file move into the which drive? D drive. Which location? But now not any temp DB file come. Why? Yes. This will be happen due to the we have not restarting SQL Server services till now. Okay. Okay. So that case first we
after the move the file, Yes. if not restarting tempdb, that case the old tempdb location or old tempdb file will be using. But when I starting, then my current tempdb file creating and current tempdb file will be using. Okay, so I'm going to start my test server. Okay, right click, Okay. yes, right click and start. We can start two location from here or from the services.msc. Okay. Okay, so I tell you both path services. If you want to restart SQL server, my server will test. So this way, okay. And I also suggesting you, before restarting tempdb, first you check your server anything running or not. sp who to, can you anyone tell which is the next command I put here? Uh, ACTIVE means Active. only the active connection. No need Okay. to the sleep or no need to the previous connection. Okay. Okay. I want to only the active connection. Okay. So my server nothing सर is हमने running. अगर SQL सर्विसेज रिस्टार्ट नहीं किए तो वो मूव नहीं होती है क्या फाइल्स दूसरे ड्राइव में, जो भी ड्राइव में Yes. हमने मूव किया है? नहीं होती. ओके ओके, उसके लिए क्यों नहीं होती? SQL सर्विसेज रिस्टार्ट करनी ही पड़ेंगी? नेसेसरी है. नेसेसरी ओके है. सर, ओके अल्टरनेटिव में आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ. ठीक है. आप ओके क्या, सर। अगर आप रिस्टार्ट नहीं सर्वर को, तो देन नो इशू. आप क्या कीजिए, और नीरज छचुंदर जो जस्ट वन सॉरी, so that case I tell you one alternative way. Right click tempdb, go to property. If you not restarting your server, then good way, go to the tempdb and I create tempdb one file like this, tempdb 9. Okay, and I create this file directly in default C drive, but I want to create D drive, for example, demo. Okay, this way we add one more tempdb file without restarting your servers. Okay, and if anything load increase or then case, this temp9 file will be using. Okay, Okay. this way. So I'm going to here it will be default automatic created. Okay, Yes. ओके so that case I will be not need to restarting my server. It's a when production server no need not want to restart it, but your load will be increasing suddenly Okay. or maybe other region. We can remove tempdb file after the 10 to 15 days if you need. Otherwise you create, then okay. Okay. If I want to remove this tempdb file, then I can remove definitely. Go to this, right click, property and files, and select this one. This is the file. Remove this way. Okay, Okay. this way. Simple. I will be giving everything in practically. Without practically, we have alternative. So many things we can do the alternative. So right now I'm starting simple restarting service. Before restarting, I tell you one more thing. Cancel. Okay. So there is you check. There is no tempdb file, not demo db. If I restarting, okay, before restarting they will be giving close the sessions or everything if possible. So restarting services, then when you restarting SQL services, then two things will be restarting. One is the SQL server, other is the SQL agent always. ओके Okay. So I have before that alert will be SQL server. Now alert stop SQL agent also. So yes, Okay. we have stopped both. सर अगर Sometimes एक्टिव कनेक्शंस रह गए उसमें तो okay. कुछ इशू आता है क्या फिर रिस्टार्ट Yes, सर्विस किया तो? yes.
आपका जो रनिंग डीबी है वो करप्ट हो सकता है। जिस डीबी में आपको कोई ऑपरेट, सपोज वो आपकी इंसर्ट कमांड चल रही है या डिलीट हाँ। कमांड चल रही है, आपका क्या है कि 10,000 रो में से 5,000 रो इंसर्ट हो चुकी हैं और 5,000 रो रिमेनिंग है, तो दैट केस आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। हाँ। उसका बैकएंड मैकेनिज्म होता है, एसक्यूएल सर्वर चेक करता है, बट क्या होता है ना, फिर भी आपको नेसेसरी रहता है कि आप इसको रिस्टार्ट नहीं करना चाहिए। ऑल द सेशन कंप्लीट हो जाए, डाउन टाइम लो प्रॉपर क्लाइंट से, देन वी कैन डू इट। ओके, सो मैंने अभी सर्विस रिस्टार्ट कीजिए, मेरा आप चेक कर रिफ्रेश कीजिए। अगर सर्विस रिस्टार्ट हो गई होंगी तो ये दोनों ग्रीन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, इधर एसक्यूएल एजेंट और एसक्यूएल इधर बोथ। आगे जो ओके। हल्का सा प्ले का बटन है ना, वो ग्रीन करेगा। सपोज मैं एग्जांपल इसको स्टॉप करता हूँ, देन ये मेरा रेड कलर का होगा। ओके। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्रॉस रेड कलर आता है ना, दिस वन। हैव यू सी माय स्क्रीन all of you? यस सर। So this one, so that's why we can also starting सर थोड़ा now। लैग चल रहा है एक्चुअली, आप जो भी ये कर रहे हो तो हमको थोड़ा लेट दिख रहा है। ओके, ऐश्वर्या आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ मुझे भी थोड़ा सा ही, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद दिख रहा है वो। अभी देखिए, अभी ये स्क्रीन दिख रही है जिसमें मैंने डेमो डीबी के अंदर मेरी टेम्प डीबी की फाइल क्रिएटेड हुई है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सर लॉग। ये फाइल क्रिएट हुई है कि मूव हुई है? क्रिएट हुई है। क्रिएट का मतलब होता है कि जब हम डेटाबेस को मूवमेंट करने का तरीका है, टेम्प डीबी की फाइल को अगर हम मूव कराना है तो हाँ। यही वे जिसके थ्रू टेम्प डीबी की फाइल को मूव करा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज आप टेम्प डीबी की फाइल को बैकअप लेके या आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहो, फिर इसको अटैच रिटैच करना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टेम्प डीबी है नहीं तो आपका सर्विस रिस्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो एसक्यूएल एज इट सर्वर इज डेटा जो था वो सारा का सारा इसमें मूव हुआ है ना? इसमें, यस, इसमें सारा सारा ओके। मूव हो जाता है। और वैसे ओके। भी आपको फॉर इन्फॉर्मेशन कि टेम्प टीवी में कोई क्रिटिकल डेटा नहीं होता। जब आप सर्वर को रिस्टार्ट करते हो तो टेम्प टीवी ऑटोमेटिक मिनिमल साइज पे आ जाता है, जो डिफॉल्ट साइज होता है। ठीक है, जब तक ओके। आपने यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं किया हो। कहाँ पे? यहाँ पे गए आप, जैसे मैंने बताया था एक दिन कि डीबी साइज का हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा फाइल कितनी साइज की है। फाइल्स में गए, ये साइज है ना 8 MB, तो आप अभी देख रहे होंगे ना डिफॉल्ट जो साइज है ना 8 MB होगा हर एक का। 8196 4 MB इक्वल टू 8 MB के बी से राइट। आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। तो जो डिफॉल्ट साइज होता है वही फाइल हर बार रिस्टार्ट होने के बाद क्रिएट होता है ऑटोमेटिक टेम्प टीवी का। ओके। ओके। ओके, सर ये अब हमने क्या, टेमडीबी का मेन यूज क्या रहता, मतलब पहले ट्रांजैक्शन हो उसमें जो कुछ होता है वो वहां पे पहले होता है क्या? हाँ एवरीथिंग, जैसे आप जो भी रिटर्न करते हो ना, आप हमने ये सेशन ओपन किया, सबसे ये पहले सेशन तो आप किसी भी डेटाबेस पे ओपन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ यूज एडवेंचर वर्क, हमने इसको किया और मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये थिंग जो इंसर्ट होगी ना, इंसर्ट के लिए जो स्पेस एलोकेट होगा, इंसर्ट के लिए जो उसको चाहिए कि डिस्क स्पेस कितना चाहिए, रैम कितनी चाहिए, सीपीयू कितना चाहिए, ये एवरीथिंग इंफॉर्मेशन टेम्प डीबी के थ्रू ही एलोकेशन होती है। ओके। उसके बाद आपसे लॉग फाइल में जाता है। लॉग किसके लॉग फाइल में? टेम्प डीबी के लॉग फाइल में। वहाँ से हार्डनिंग होती है। हार्डनिंग के थ्रू, हार्डनिंग का मतलब होता है सिंपली होता है कि टेम्प डीबी से डेटा फाइल्स को जो फिजिकल फाइल में रिटर्न करना, जो डेटा की फिजिकल फाइल है उसमें, मतलब एमडीएफ। एमडी, यस। ठीक है, मतलब अगर मैं एडवेंचर वर्क्स अभी डेटाबेस है हमारा, मुझे उसमें कुछ इंसर्ट करना है या कुछ क्वेरी आई है इंसर्ट करने की, तो पहली वो टेमडीबी के लॉग में जाती है। यस, टेम्प डीबी के लॉग में जाती है। वो वहाँ पे हाँ। चेक करती है कि रिसोर्स इसको अवेलेबल हैं या नहीं है। ओके। उसके बाद वो एसक्यूएल सर्वर रिसोर्स को एलोकेट कर देता है, देन आपकी कमांड इस इंसर्ट पे चलती रहती है। ठीक है, जैसे ही रिसोर्स एलोकेट, जो रिसोर्स एलोकेशन होता है, इसको मान लो उसको 2 कोर सीपीयू चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, ये सब एलोकेशन टेम्प डीबी पे होता है। एवरीथिंग इंसर्ट अपडेट, और आप टेम्प टेबल क्रिएट करते हो ना, टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी स्टोर प्रोसीजर और टेम्परेरी वेरिएबल्स, ये सब टेम्प डीबी में क्रिएट होते हैं। ओके। ओके।
मतलब अगर हमने इंसर्ट चलाया और उसको क्या बोलते हैं जो रिसोर्स लगता है वो अगर सफिशिएंट नहीं रहा तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती। हाँ, क्वेरी क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर की क्या कैपेबिलिटी है, क्या करता है कि रिसोर्स को मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ यूज करता है। मिनिमम, जैसे मेरे पास 10 GB रिसोर्स है, ठीक है, टोटल मेरे 4 डेटाबेस, एक एडवेंचर है, एक टेम्प डीबी है, एक मॉडल डीबी। मैं चारों में 4 कमांड चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल। बट मेरी जो एडवेंचर डेटा में वो इंसर्ट चली जो 10 GB से ज़्यादा की है, 10 GB से ज़्यादा मेरी रैम कंजम्पशन करती है। टोटल मेरी रैम है 16 GB। इसमें से 10 GB ये ले रही है टेम्प डीबी, और इसने कि एडवेंचर ने 5 GB मेरा टेम्प डीबी ने लिया, 2 टेम्प इसने ले लिया। तो उस केस में हम क्या कर पाएंगे, उस केस में हमें क्या होगा कि बेहतर भी है कि क्या करेगा एसक्यूएल सर्वर, सबसे पहले इसको स्मॉल प्रोसेस में स्प्लिट कर देता है, बड़ी प्रोसेस को। तो छोटी छोटी प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जितना उसको रिसोर्स मिल जाएगा उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। सपोज टेम्प डीबी की 2 GB की फाइल है, तो पहले टेम्प डीबी की क्रिएट कर देगा, उसको कंप्लीट कर देगा। फिर जो 2 GB फ्री होगा वो आपको इसको एडवेंचर वर्क को दे देगा, इसको कंप्लीट कर देगा। फिर इसमें जो भी रिसोर्स फ्री होगा वो मॉडल डीबी को दे देगा या मास्टर को, जिसमें भी चल रहा होगा वो। एसक्यूएल सर्वर की वी कैन डू द मल्टीपल थ्रेड। मल्टीपल थ्रेड में हम सब प्रोसेस जिसको बोलते हैं ना, प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस चला सकते। ओके, ठीक है, तो वो इसको थ्रेड बोलते हैं, जिसको मेन चीज बोलते हैं थ्रेड। हाउ मेनी थ्रेड विल बी रनिंग कंटिन्यूसली, ये सब डिपेंड होता है कि आपने, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, जाएंगे यहाँ पे अच्छा डेटाबेस पे एडवांस सेटिंग्स और एडवांस, ये देखिए ना यहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। मैंने अभी 8 कोर है, मतलब मेरे 8 कोर मैक्सिमम डिग्री पैरेललिज्म में लगे। क्रॉस थ्रेशोल्ड पैरेललिज्म कितना है, 5 मेरे एक साथ पैरेलल थ्रेड चल सकते हैं, मतलब 5 क्वेरी एक साथ रनिंग हो सकती हैं मेरी। ठीक है, ये सब सेटिंग, ये सेटिंग की जाती है कब, देखिए ब्लॉक प्रोसेस। यस, गो अहेड। Yes, sir. But it is the cross threshold parallelism is set to 50 na, because on production server नो, ये अभी इट्स फिलहाल नॉट। के लिए ये हम सेट कर सकते हैं क्या एज पर यस रिक्वायरमेंट? वी कैन, हाँ ओके, वी कैन डू इट, बट first we analyze how, why to set up, how much setup. It's a totally depending, it's a calculation, how many core, how many CS packet pop up will be happen. So that's why ना CX पैकेट क्या है सर? पॉप अप राइट, ये मैं एक डिस्कस करूंगा, टॉपिक होगा जिसमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, जैसे आपके साथ थ्रेड के अंदर थ्रेड चल जाते हैं, मल्टीपल थ्रेड। कैन यू गिव मी 1 मिनट जस्ट। ओके सर। Sorry to guide, it's a personal call. So Yes. we have done this way. सो क्रॉस मल्टीपल थ्रेड का मतलब होता है, जैसे आपने इंसर्ट चलाया एक टेबल पे, अपडेट भी चला दिए या डिलीट भी चला दिया, बट आप चाहते, जैसे आपकी टेबल में एक प्रोसीजर है जिसमें आपने बहुत सारे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखे हैं, मल्टीपल टेबल के साथ लिखे हैं। ठीक है, एक स्टोर प्रोसीजर बना, जैसे एक टेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसीजर है जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में इंसर्ट करा रहे हो, और आप जॉब कैंडिडेट में आप अपडेट करा रहे हो, और किसी में आप पासवर्ड में आप डिलीट करा रहे हो या कुछ डेटा और ऐड करा रहे हो। तो आपने उस प्रोसीजर में क्वेरी लिखी होगी, केस 1 इंसर्ट दिस टेबल, केस 2 इंसर्ट दिस टेबल, या केस 3 इंसर्ट दिस टेबल। या इंसर्ट से पहले क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर रहे हो, फिर अपडेट कर रहे हो, फिर इंसर्ट कर रहे हो, फिर डिलीट कर रहे हो। आपने मल्टीपल प्रोसीजर बनाए, मल्टीपल एक ही प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल केस लिख दिया या मल्टीपल स्टेटमेंट लगा दिया या स्विच कर दिया। तो वो क्या होता है कि एक पैकेट दूसरे पैकेट में जैसे अपडेट चल रहा है,
तो आपने दो कॉलम अपडेट करने चाहते हैं, लेकिन सडनली उन 2 कॉलम में आपका कोई डेटा रीड हो रहा है, तो जब तक वो रीड हो रहा है तब तक वो अपडेट नहीं होगा, लॉकिंग में चला जाएगा। तो एक थ्रेड लॉक के लिए बन गया, एक अपडेट के लिए बन गया, ठीक है। थ्रेड, 2 थ्रेड बन गए, एक ही क्वेरी के 2 थ्रेड बन जाते हैं। फिर उसने क्या किया, जैसे ही वो उसने क्या हुआ, उसका अपडेट खत्म हो गया, तो वो एक थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक थ्रेड बचेगा, कौन सा, वो अपडेट वाला, वो इंसर्ट वाला या डिलीट वाला, तो उसको भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। हो सकता है एक टेबल पर आप किसी में कॉलम अपडेट कर रहे हो, किसी में आप कॉलम को अल्टर कर रहे हो, किसी में कोई चीज़ मॉडिफाई कर रहे हो, ये डिफरेंट थिंग है। तो ऐसे अब एसक्यूएल सर्वर क्या करता है कि ऐसे एक क्वेरी को मल्टीपल 8 कोर में या जितना आप थ्रेड डिफाइन करना चाहो उतना कर सकते हो, बट इट डिपेंड करता है टोटल एसक्यूएल सर्वर के हाउ मच कोर हैं, कितने, ठीक है। ये सेटिंग होती है। मैं आपको हाउ टू सेटिंग द कोर और थ्रेडिंग, ये अलग तरीके का सेटिंग मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको शेयर करूंगा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द थ्रेड और ये अदर थिंग्स, ठीक है। अभी टिल नाउ आप इसमें टेम्प डीबी में देखिए, मेरी टेम्प डीबी की फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और मेरी सी ड्राइव में भी होगी टेम्प डीबी फाइल, कहाँ पे, प्रोडक्ट्स फाइल्स में, एसक्यूएल सर्वर में, टेस्ट डीबी में, यहाँ पे जाएंगे डेटा में, तो राइट क्लिक में मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। एक्चुअली मेरे वो नहीं था क्या, एक्सेस राइट, तो मैं सिक्योरिटी पे जाता हूँ, एडवांस और कंटिन्यू, और जस्ट 1 सेकेंड, चेंज एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स, एवरीवन करता हूँ इसको, ये बेसिक चीज़ें वैसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे सिक्योरिटी परमिशन देते हैं, अदर थिंग्स, अप्लाई, यस यस। अब मैं देखता हूँ इसको, मेरे को परमिशन है, अभी भी मेरे को परमिशन नहीं है। बाकी अदर डीबी पे चेक करता हूँ, सर्वर 1 2, ओके, आई थिंक मेरा परमिशन नहीं है, वो परमिशन का इशू है और कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें सी ड्राइव में क्रिएटेड थी, जो मैंने अभी बताई थी ना लोकेशन, सी ड्राइव से जिसको मूव कराया था। तो ये आपका टेम्प डीबी आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो आप इसमें जाओगे ना, जैसे मैं यहाँ पे गया फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे टेम्प डीबी की 8 फाइल क्रिएट होंगी, वो डेटा फाइल के अंदर आप टेम्प डीबी में जाओगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट में, आई गिव क्रिएट द परमिशन, ओके, सिट सर हम टेम्पडीबी, बोलिए। हम टेम्पडीबी तभी ऐड करते जब एसक्यूएल सर्वर हमको रिस्टार्ट नहीं करना होता तभी ना। हाँ, जब आप एसक्यूएल सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना चाहते, और आपका तो फाइल साइज बढ़ता जा रहा है और आपका क्या कहते हैं, सर्वर स्लो हो रहा है, ठीक है। आपको टेम्प डीबी पे बहुत सारे लॉक लग रहे हैं, ठीक है। एसपी अंडरस्कोर लॉक से चेक कर सकते हो, और एसपी अंडरस्कोर ब्लॉकिंग हो रही है, या आपका सीएस पैकेट पॉपअप बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपका टेम्प डीबी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो दैट केस में आप सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना चाहते, बट हाँ आप चाहते हो कि मैं टेम्प डीबी को साइज इंक्रीज करूँ, ठीक है। और टेम्पडीबी का साइज हमेशा 8 ही रहता है क्या, या हम नहीं अपने नहीं, तरफ से कॉन्फ़िगर करते कुछ ऐसा? हम अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और मैंने उस टाइम जब हम एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे तब भी हमने बताया कि टेम्प डीबी का डिफ़ॉल्ट साइज 8 MB है, जो कि रखा है। हम इसको चाहें तो 1025 MB रख सकते हैं, मतलब 1024 MB मान लो, 1 GB या 2 GB या 8 GB। मैंने क्या किया है कि अपने इन्वायरमेंट में मैंने 2 फाइल जो है मेरी टेम्प डीबी की, मैंने 4 फाइल, मेरे यहाँ पे टोटल 12 फाइल बनी है, तो मैंने जो 4 फाइल है वो 25-25 GB की बना ली इनिशियली, और बाकी जो फाइल है मेरी डिफ़ॉल्ट ऑटो ग्रोथ रखा है और डी ड्राइव में रखी है ओनली टेम्प डीबी के लिए, जिसमें मेरी 1 TB डिस्क है। तो क्या होता है कि इनिशियली 200 GB एलोकेट हो जाता है जब भी सर्वर रिस्टार्ट हो, तो इनिशियली मेरी सर्विस बहुत फास्ट चलती है, बहुत क्वेरी फास्ट चलेंगी, सब कुछ फास्ट है। लेकिन क्या होता है, जब जैसे ही 200 GB कंप्लीट हो जाता है तो मेरा सर्वर स्लो होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया कि बाकी की ड्राइव ना डी ड्राइव में ना बना के मैंने ई ड्राइव में, ऐप ड्राइव में बना दी टेम्प डीबी की फाइल्स ना। तो उससे क्या होगा कि
मेरा जो लोड था ना वो स्प्लिट हो गया, कुछ डी ड्राइव पे चला गया टेम्प का, कुछ ई ड्राइव पे, कुछ एफ ड्राइव पे। तो जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, इंसर्ट अपडेट करते हैं, तो एक्चुअली हमारे ड्राइव लेवल पे लॉक लगता है, क्योंकि एसक्यूएल जब डेटा राइट करता है तो एक पेज होता है 4 KB का, ठीक है, तो 4 KB के चंक में डेटा को राइट करता है एसक्यूएल सर्वर, हार्ड डिस्क में 0-1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट में। तो उस टाइम पे जब राइट करता है तो उस ब्लॉक को क्या करता है, उस 8 KB के ब्लॉक को बोलता है कि भैया इस ब्लॉक में कोई यूज नहीं करेगा जब तक मैं इसको राइट नहीं कर दूं 8 KB को। तो ऐसे 8 KB के मल्टीपल ब्लॉक होते राइट होते हैं पैरेलली। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टेम्प DB का साइज। मैं एक और अगर उस चेंज करने के बाद आप देख सकते हो आपका टेम्प DB का साइज चेंज हो गया, ठीक है, ये लोकेशन चेंज होगी। दूसरा तरीका है कि आप चाहते हो कि इसको मूव वैसे कर, तो वैसे मूव नहीं कर सकते, वैसे मूव करोगे तो टेम्प DB इनिशियली ऐसा डेटाबेस है, अगर टेम्प DB नहीं होगा तो आपका एसक्यूएल सर्वर रिस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, ये टेम्प DB की 8 फाइल क्रिएट की यहाँ पे, और मैंने इनको कॉपी किया कहीं और पेस्ट कर दिया, ठीक है, टेम्प1 टेम्प2 ये सभी फाइलों को मैं कहीं और कर देता हूँ, और उसके बाद मैं सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट करता हूँ, तो मेरा एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट होगा ही नहीं, वो लोकेशन पे नहीं मिल रही इसलिए। यस, क्योंकि टेम्प DB ऐसा डेटाबेस है जो चाहिए एसक्यूएल सर्वर को स्टार्टिंग के लिए। टेम्प DB, मास्टर DB, मॉडल DB और MS DB, 4 DB कंपलसरी हैं। अगर 4 DB की फाइल और लोकेशन एक भी करप्ट होती है तो आपका एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो आपको ये टेम्प DB मूवमेंट इजीली समझ में आएगा। फाइल मैंने आपको स्क्रिप्ट शेयर कर दी है। अब हम चलते हैं डेटा फाइल और फाइल ग्रुप पे। लॉग फाइल ये मैंने उस दिन बता दी थी आपको, डेटा फाइल क्या होती है, फाइल लॉग फाइल क्या होती है, ये मैं बता चुका हूँ ना। एक MDF फाइल होती है, जिस MDF फाइल को भी डेटा फाइल जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा फाइल, और NDF जो .NDF होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा फाइल, ठीक है। जो लॉग होती है .LDF बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए टेम्प DB के केस का ही ले लीजिए, ये हमारी राइट करके प्रॉपर्टी पे गया, फाइल्स में गया, और ये देखिए ये मेरी क्या है, प्राइमरी डेटा फाइल है जिसका एक्सटेंशन है .MDF, मास्टर डेटा फाइल बोलते हैं, ठीक है। और जो मेरी डिफ़ॉल्ट फाइल है बाकी उनका एक्सटेंशन NDF होता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे तो सभी फाइल MDF में कन्वर्ट कर दी, तो कोई इशू तो नहीं है, नहीं कोई इशू नहीं होगा। MDF और NDF में कोई इशू नहीं, ओनली जस्ट एक्सटेंशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने सभी की सभी MDF में कन्वर्ट कर दी, कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और इस डेटाबेस में जाता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और मैंने क्या किया, फाइल्स में गया और एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्रिएट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इधर, जैसे अभी तो देखिए ये MDF है, ये LDF है, अब जो क्रिएट होगी ना, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, जो भी क्रिएट होगी NDF होगी, ठीक है। ये देखिए मेरी अब राइट क्लिक प्रॉपर्टी, ये फाइल्स, और ये क्रिएट हुई मेरी .NDF, ये हुई ना। इसको चाहो तो MDF पे या NDF पे, ये टेम्प DB के इसमें डिफॉल्ट MDF पे हमने कन्वर्ट की थी ना जब स्क्रिप्ट रन किया था। ये देखिए कहाँ गया, इसके स्क्रिप्ट को जस्ट, ये इसकी थी सेकेंड थिंग, ये यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सटेंशन, देखिए मैंने सभी जो डेटा फाइल का एक्सटेंशन सभी का MDF लिख दिया था। मैंने चाहता तो पर्टिकुलर एक फाइल को सिलेक्ट करता और क्लिक करके उनको NDF कर देता, बट मैंने सबको MDF कर दिया, कोई इशू नहीं हुआ ना यहाँ पे। मैंने सिलेक्ट किया LDF फाइल, MDF फाइल, और एल्स अगर मैं NDF करता तो NDF भी सिलेक्ट कर लेता, ठीक है।
बट मैंने सभी को एमडीएफ में कन्वर्ट किया, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया टेम्प डीबी का मूवमेंट। अब हम चलते हैं क्या है ये लॉग फाइल हो गया। अब हम आपको फाइल ग्रुप बताते हैं। ठीक है, फाइल ग्रुप होता क्या है? फाइल ग्रुप का जस्ट लाइक एक कंटेनर की तरह यूज करते हैं। जैसे हम अपनों ऑफिस में जाएं या फिर अपने सर्वर पे जाएं या पीसी पे जाएं, तो बहुत सारे हम फोल्डर बनाते हैं ना, कि जस्ट लाइक मैंने बना दिया इसमें मैं डीबी रखूंगा, टेम्प डीबी की लोकेशन रखूंगा, और इसमें मैंने एसक्यूएल ट्रेनिंग का, तो जो फोल्डर बना रहा है एक कंटेनर है ना, इसके अंदर ट्रेनिंग रखा है मैंने और इसके अंदर मैंने एसक्यूएल डीबीएस से रिलेटेड नोट्स रखे हैं। ठीक है, ऐसे इसमें सॉफ्टवेयर रखा है। तो हम कंटेनर, फाइल ग्रुप जस्ट लाइक ए कंटेनर होता है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने कुछ एक डेटाबेस है, कौन सी, एक तो मैं रीड ओनली फाइल बना रहा हूँ, एक रीड राइटेबल फाइल बना रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ जो आर्काइवेबल की प्रोसेस के लिए यूज हो सकती है। डेटा को आर्काइविंग करना होता है तो उस डेटा को कोई यूज ना करे, तो आप फाइल बना के डेटा क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, आपको बताता हूँ फाइल ग्रुप कैसे क्रिएट बनाते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया, और मैंने यहाँ पे एक फाइल ग्रुप सेलेक्ट किया, इसमें ऐड किया। तो डिफ़ॉल्ट जो फाइल ग्रुप होता है एवरी डेटाबेस का प्राइमरी होता है। क्यों? हमने यहाँ चेक किया है ना, प्राइमरी डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट ये रीड राइटेबल होता है। रीड, अगर आप इसको रीड ओनली कर दोगे तो आपकी जो भी डेटा फाइल बनाओगे उसमें सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल में ऐसे, जैसे मैंने क्या किया, एक फाइल ये बना दी सेकेंडरी SECOND सेकेंडरी रीड फाइल। रीड फाइल का मतलब है अगर मैं इसको रीड ओनली कर दूंगा और उसके अंदर जो भी टेबल क्रिएट करूंगा उस टेबल पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, उस टेबल पे सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी चलेगी। ओके। तो इस केस में या तो रीड बना दो, या आप ऐसा करें कि डेटा को बेटर वे में मैनेजमेंट करना चाहते हो। जैसे मेरी एक टेबल है, एक डेटाबेस में जस्ट 10 टेबल हैं, वो ओनली यूज होती हैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के लिए या एचआर के लिए या फाइनेंस के लिए। एचआर की सभी टेबल मैं एचआर में डाल दूंगा और उसको रीड ओनली बना दूंगा, एचआर टीम ही एक्सेस कर सके उसको। ओके। डेटा चेंज नहीं करना चाहता मैं, उसमें जो डेटा है वही रहेगा एज इट इज, सिर्फ सिलेक्ट कमांड चलेगी। या हम रिपोर्टिंग पर्पज करते हैं ना, जैसे रिपोर्टिंग करते हैं कभी कभी, जैसे हम टेस्टिंग टीम को देते हैं, तो क्या करते हैं हम, जो टेबल होती है ना उनको रीड ओनली फाइल ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे मैंने इसको रीड ओनली कर दिया इसको, और मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके किया, ये फाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया और मैंने एक फाइल क्रिएट की। ठीक है, प्रॉपर्टी क्रिएट किया मैंने, फाइल्स में गया और एक फाइल क्रिएट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल नई क्रिएट की, जैसे मैंने क्रिएट की HR एडवेंचर डेटा। ठीक है, सपोज, और मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, रो फाइल है। ठीक है, फाइल ग्रुप को मैंने प्राइमरी की जगह मैंने सेकेंडरी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस फाइल ग्रुप में मैं जो भी टेबल ऐड करूँगा ना वो सब टेबल रीड ओनली होंगी। मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक की मैंने एक टेबल का किसी का भी ऐसे जनरेट स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑन प्राइमरी लिखा ना, अगर मैं ऑन सेकेंडरी लिख दूंगा ना तो मेरी जो भी ये टेबल क्रिएट होगी, सपोज मैं ह्यूमन रिसोर्स 1 क्रिएट कर लेता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स 1 के अंदर डिपार्टमेंट 1। ठीक है, और इसको प्राइमरी की जगह सेकेंडरी करता हूँ। जो मेरा फाइल ग्रुप है, क्या है मेरा फाइल ग्रुप, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और ये सेकेंडरी है। इसको मैंने किया कॉपी, सर मुझे ये प्राइमरी और सेकेंडरी का यूज नहीं समझा, फाइल ग्रुप में क्या मैं होता है? बताता हूँ। SECOND सेकेंडरी, RY just give me 1 minute, I discuss details.
generate here script, new window. अगर मैं इस टेबल को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरी ये नई टेबल क्रिएट होगी इस फाइल ग्रुप में क्रिएट होगी, और आपको ये फाइल ग्रुप की आप जैसे ये टेबल की दे रहे हैं लोकेशन, जब मैंने इसको फाइल ग्रुप क्रिएट किया था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया था, एक फाइल भी क्रिएट की थी, ये फाइल, इस फाइल को मैंने सेकेंड, इसकी लोकेशन कहाँ दी थी, सी ड्राइव। अगर हम चाहते तो इसकी लोकेशन डी ड्राइव में दे सकते थे, अलग डाल सकते, तो मेरा ये टेबल एक अलग फाइल ग्रुप में सेव हो जाएंगे। तो अगर मैं इस फाइल ग्रुप का बैकअप लेना चाहूँ तो सिर्फ इसी फाइल ग्रुप का बैकअप लूंगा, और क्रिटिकल डेटा है और बेटर मैनेजमेंट के लिए। हेलो, हाँ हेलो सर। आई थिंक क्लियर हुआ, आई थिंक कि नहीं? नहीं नहीं ये सर, क्या, पर हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी ये सब रीड ओनली, ये ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दे सकते क्या परमिशंस? ये हमको ये कब क्रिएट करने पड़ते फाइल ग्रुप्स? देखिए हाँ मैं मुझे ये वही जानना था। मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको रियल टाइम रिक्वायरमेंट ये आई, आपके मैनेजर ने बोला कमल मुझे एक टेबल बना के दो जिस टेबल में सिर्फ मैं पेरोल का डेटा डालूंगा, ठीक है, और पेरोल का डेटा जो डालूंगा वो क्या होगा, रीड ओनली। अभी मैं डेटा वैसे डंप इंसर्ट कर दूंगा, उसके बाद उस टेबल को आप मूव करा दो रीड ओनली ग्रुप में, ठीक है, रीड ओनली, तो उसमें कोई डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट ना कर सके, ठीक है, ओनली रीड कर सके उस डेटा को। सिनेरियो ये है, या हम ये करते हैं, हमें किसी ने बोला कि आप 10 टेबल बना दो, 10 टेबल को एक डिफरेंट ड्राइव में, ये क्रिटिकल टेबल हैं, इनका किसी भी हालत में डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी किसी का होगा तो हम उसको वो कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट 10 टेबल तो उसको हम किसी ड्राइव, सेपरेट ड्राइव में डाल के उस फाइल ग्रुप का पर्टिकुलर बैकअप लेते रहेंगे। तब हमको वो जो फाइल आपने एमडीएफ क्रिएट की, तो वो क्रिएट करनी पड़ती है क्या तब हाँ फाइल ग्रुप के लिए? हाँ, फाइल ग्रुप के लिए देखिए ये मैं ओके। यहाँ पे सबसे पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने फाइल ग्रुप क्रिएट करता हूँ, जैसे एक फाइल ग्रुप मेरी किसके लिए है, ये फाइल ग्रुप में तुम मल्टीपल टेबल्स भी डाल सकते हो, ठीक है, एक टेबल नहीं, इस डेटाबेस में मैंने अगर इसको डिफॉल्ट मैंने ऑटो कर दिया तो ऑल द फाइल ग्रुप मेरी अब इसमें क्रिएट होंगी, सब जितनी भी नई टेबल क्रिएट करूंगा मेरी सब इसमें क्रिएट होंगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको डिफॉल्ट नहीं करता, डिफॉल्ट मेरा प्राइमरी में होगा, बट मैं चाहता हूँ कुछ फाइल जो नेसेसरी फाइल हैं जिनको मैं खुद से क्रिएट करना चाहता हूँ रीड ओनली में, ताकि उनको कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट ना कर सके। ये होता है कब, जैसे मैं बताऊँ, आपके पास एक डेटाबेस आया जो माइग्रेशन करना था आपको, ठीक है, आपको माइग्रेशन करना था डेटाबेस, जिसमें आपके डेटाबेस में 10 टेबल थी, जिसमें 10 में 5 टेबल ऐसी थी जिनमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कुछ कर रहे, लेकिन 5 टेबल ऐसी हैं जिनका डेटा कभी चेंज होता नहीं, तो आपको बोला है इसका डेटा तो चेंज होता नहीं, तो ना इसमें कभी इंसर्ट होता ना कभी अपडेट होता, तो हम क्यों डालें उसको सेम फाइल ग्रुप, उसको हम रीड ओनली फाइल ग्रुप में एक दूसरी ड्राइव में डाल देते हैं जहाँ से सिलेक्ट ऑपरेशन हमारे इजीली हो जाएंगे, कम टाइम लेगा और हमारे इजीली सिलेक्ट ऑपरेशन होंगे, क्योंकि वो दूसरी ड्राइव में डली है, ये दूसरी ड्राइव में डली है, फाइल लोकेशन डिफरेंट है, तो सिलेक्ट ऑपरेशन हमारे फास्ट परफॉर्म होंगे। और ये फाइल ग्रुप क्या करता है, Excuse me. कंटेनर का काम करता है। यस, गो अहेड। Means only one MDF is means MDF फाइल only एक ही क्रिएट करनी पड़ती है क्या, कि एनडीएफ भी क्रिएट करनी पड़ती है? फिर एमडीएफ जब फुल हो जाएगी तो आप जितना चाहो एनडीएफ क्रिएट कर सकते हो, जितनी फाइल चाहो, एक पूछ दो। रही एमडीएफ क्रिएट कर सकते हैं बराबर, तो हम हाँ, एमडीएफ फुल होगी तो एनडीएफ क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली होगी कि हमें करनी पड़ेगी फिर एनडीएफ ऐड? एनडीएफ अलग होती है, एनडीएफ ओके जब आप करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आपका डेटा एक ही फाइल में रिटर्न हो, वो तो आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक नहीं हो रहे, वो तो हम मैनुअली अपने डेटाबेस को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर हमारे डेटाबेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, इंसर्ट अपडेट फास्ट हो, सिलेक्ट फास्ट हो, तो हम जब एनडीएफ फाइल क्रिएट करते हैं तो एनडीएफ फाइल में जो डेटा रिटर्न होता है ना, वो कैसे होता है,
एक तो होता है जब आप लॉग फाइल में डेटा राइट होता है तो वो सीक्वेंसली होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लॉग फाइल क्रिएट की, लॉग फाइल 1, ये देखिए ना, इसमें मेरी लॉग फाइल कितनी है, फाइल्स में गया, मेरी लॉग फाइल 1 है। सपोज मैं एक और लॉग फाइल क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक और लॉग फाइल क्रिएट कर देता हूँ। मैंने क्रिएट की AD लॉग FAG लॉग, ठीक है। मैंने ये क्रिएट की, डेटा की जगह लॉग फाइल सिलेक्ट किया, ठीक है। और नॉक जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगी। आप लोकेशन दे सकते कहाँ क्रिएट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरी लॉग फाइल 2 लॉग फाइल क्रिएट हो जाएंगी ना। कैसे, ये देखिए 2 लॉग फाइल क्रिएट हो गई। उस केस में क्या होगा कि जो डेटा रिटर्न होगा ना लॉग फाइल का, तो पहले लॉग फाइल पहले वाली फुल होगी। कौन सी वाली, ये वाली जिसका 39 MB स्पेस है। जब 39 MB फ्री हो जाए, फुल हो जाएगा, उसके बाद इस लॉग फाइल में रिटर्न होगा डेटा। बट ओके बट हाँ या एनडीएफ के केस में क्या होता है, डेटा जैसे 1 2 3 एनडीएफ फाइल है, तो इनमें डेटा जैसे आपका 10-15 GB का ट्रांजैक्शन है, तो 5 GB इसमें चल रहा है, 5 इसमें, 5 इसमें, तो वो 15 GB 5-5 में डिवाइड हो गया, तो आपका लोड सेग्रीगेट हो गया, तो आपका परफॉर्मेंस फास्ट हो गई। जबकि लॉग फाइल में पहले 15 GB का ट्रांजैक्शन है, तो 15 के 15 GB पहले इसमें रिटर्न होगा। अगर इसका साइज 15 GB का है मान लो, तो पहले 15 GB इसी में होगा, 15 MB या 15 GB जो आप देते हो। तो जब 15 GB फुल हो जाएगा लॉग फाइल में, तब सेकेंडरी फाइल वो होगी, स्टार्ट होगी, उसमें फिल होना डेटा। तभी बोलते हैं जो लॉग फाइल का डेटा होता है वो सीक्वेंसली राइट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मल्टीपल लॉग फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें वेस्टेज ऑफ डिस्क बोलते हैं ना। जनरली कोई नहीं बोलता कि लॉग फाइल आप मल्टीपल लॉग फाइल क्रिएट कीजिए और हर एक लॉग फाइल का साइज आप इनिशियली 25 MB दे दी, 25 GB 100 GB दे दी। बट मैं चाहता हूँ कि आप लॉग फाइल का साइज जो मेन लॉग फाइल है ना, उसका एटलीस्ट इतना दीजिए कि आपका जो हैवी से हैवी ट्रांजेक्शन है वो आपके कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद एक लॉग फाइल बनाई सेफ्टी पर्पज से। जब आपकी फुल, अगर सपोज मान लो एक ड्राइव है जिसमें इसमें ओनली 16 GB स्पेस है जिसमें मेरी लॉग फाइल रखी है, और 15 GB के ये फुल हो गया, तो फिर मेरा डेटा रिटर्न नहीं होगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक सेकेंडरी लॉग फाइल क्रिएट करके रखो सेफ्टी पर्पज के लिए, और किसी दूसरी ड्राइव में क्रिएट करके रखो और उसमें डिफॉल्ट साइज दो। जैसे ये MB फुल हो जाएगा, ऑटोमेटिक 8 MB और ले लेगा, ठीक है। ये ई ड्राइव में, ये जी ड्राइव में मेरे पास 16 GB स्पेस है ओनली, ठीक है। तो ये 16 GB तक तो ये फिल होगा। 16 GB के बाद आपका सर्वर ऑपरेशन बंद हो जाए। अगर आप बंद नहीं चाहते ऑपरेशन, तो आप सेकेंडरी लॉग फाइल क्रिएट कीजिए, उस लॉग फाइल को डिफरेंट ड्राइव में रखिए और उसको आप जितना साइज देना चाहो दे सकते हो, उतने तक फिल होगा, ठीक है। और बाद में आप इनको चाहो तो सिंक कर सकते हो लॉग फाइल को। मैं अलग डेटा फाइल को, लॉग फाइल को सिंक करना बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉग फाइल का। अब लॉग फाइल में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए ना, फिर नहीं हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो हमारा है, क्या बोलते हैं, पेज और अदर एक्सटेंशन है ना। हमारा एक्सटेंड क्या है, एक्सटेंड से पहले पेज बताऊंगा फिर एक्सटेंड बताऊंगा आपको। तो फिर मूव करें इस पे पेज टाइप पे, ओके ठीक है। देखिए मैंने जैसे आपको इनिशियली अभी बताया था ना, पेज क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, यस यस मौजूद ट्रेनिंग एसक्यूएल कीपिंग डीबी यस। देखिए जो भी आप एसक्यूएल सर्वर में रिटर्न करते हैं, जैसे भी आप इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, कुछ भी करते हो, हर एक उसके लिए एक पेज होता है। पेज होता है 8 KB का एसक्यूएल सर्वर का। ऑल द पेज आर सेम, फिजिकल साइज विल बी 8 KB। एक पेज होता है 8 KB का, ठीक है। जैसे बाइट होता है ना, 1024 बाइट मिला के 1 KB होता है, ऐसे ही 8 KB का एक पेज होता है, ठीक है। जो फिजिकली इसमें डिस्क में जो एलोकेशन होता है, उसका मैं बताऊंगा कि कैसे डिस्क एलोकेशन होता है।
वो अभी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसको जनरली कोई पूछता नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जो पेज होता है वो 8 KB का होता है, और पेज मल्टीपल टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के पेज होते हैं? एक तो डेटा पेज होता है जिसमें आप डेटा रिटर्न करते हो एसक्यूएल, जैसे मैंने बोला इंसर्ट कमल और उसकी इंफॉर्मेशन, तो वो डेटा पेज क्रिएट होगा, ठीक है। जो भी डेटाबेस होगा उसमें एक डेटा पेज क्रिएट हो। अब मैं उस पर टेबल पे कोई इंडेक्स बना रहा हूँ तो इंडेक्स पेज होगा। अब टेस्ट और इमेज सेव कर रहा हूँ तो टेस्ट इमेज पेज क्रिएट होगा, ठीक है। ग्लोबल एलोकेशन या मैपिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था फाइल ग्रुप क्रिएट किया था, अदर थिंग क्रिएट की थी, तो ये क्या कर रहे हैं? ग्लोबल कंटेनर के काम कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं ना ये, ओके। ठीक है। ये इंटरनली प्रोसेस है। ये मैं आपको क्या बोलता हूँ, अभी आपको ये थोड़ा नहीं समझ में आएगा क्योंकि रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसके लिए थोड़ा सा हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ है ये, ठीक है। जैसे ये हार्ड, वैसे तो जनरली आपको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भैया एसक्यूएल सर्वर में डिफ़ॉल्ट पेज साइज कितना होता है, 8 KB है। बट आपको और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 64 KB का बोल सकते हो बनवाने के लिए। किससे? पहले वो हार्ड डिस्क का चेंज करेंगे, फिर आप एसक्यूएल सर्वर की सेटिंग को चेंज करेंगे, तब 64 KB का पेज होगा। तो उससे क्या होगा, जो आप 8 KB का एक पेज होता है अब वो 64 KB का हो जाएगा, तो 64 KB में ज़्यादा डेटा रिटर्न होगा एज कम्पेयर टू द 8 KB। और एक जो एक्सटेंड होता है ना पेज के साथ साथ, एक एक्सटेंड होता है जो मैं बता रहा था, एक्सटेंड, जो एक्सटेंड होता है वो मिला के होता है 4 पेज को, ठीक है, 8 पेज को, नॉट अ 4, 8 पेज को, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है जो आप इस तरीके से डेटा रिटर्न होता है आपका। देखिए मैं बताता हूँ, एक्सटेंड, टाइप ऑफ एक्सटेंड डिफरेंट, एक्सटेंड। देखिए जो आपका एक्सटेंड होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कितने पेज का? एक पेज मैंने 4 KB का, 8 KB का बताया, तो 8 8 64, जब 8 पेज मिला के एक एक्सटेंड को बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए कहीं, जैसे ये रहा, नहीं पेंट क्या किया मैंने, ये मेरा एक 1 पेज है मेरा, और ये कितना है, 8 KB का है, ठीक है। एक ब्लॉक होता है जो 8 KB का। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा रिटर्न होता है ना एसक्यूएल सर्वर में, तो जो क्या होता है, अगर मैं 8 पेज बना दूं, 8 पेज एक साथ कर दूं, 8 पेज एक साथ इक्वल टू 1 एक्सटेंड होता है, 1 EXTEND, ठीक है। तो हम जो 64 हो गया, तो जो हम रिटर्न की बोलते हैं ना कि डेटा को फास्ट रिटर्न करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक पेज का साइज एक एक्सटेंड के बराबर कर देते हैं, 64 जो अभी मैं बता रहा था आपको। इसमें अगर हम 64 KB का कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा डेटा फास्ट रिटर्न होगा। और दो और पेज कितने टाइप के होते हैं मैं आपको यहाँ पे पहले पेज, एक तो डेटा पेज भी आपके 7-8 टाइप के होते हैं। कौन से? डेटा पेज हो गया जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव होती है यूजर की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें इस वाली टेबल पे गया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये इंफॉर्मेशन सेव है कोई, तो ये क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन है किसी यूजर की, कोई भी हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन एक डेटा पेज में सेव होगी। किसमें सेव होगी? डेटा पेज में, ठीक है। ये सपोज ये इंफॉर्मेशन मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार, ये एड्रेस आईडी 1 जो सेव है ना, एक डेटा पेज में सेव होगी। अगर ये 8 KB से कम का साइज है, जैसे एनवेयर के ले लिया, एनवेयर के लिए, तो सब साइज 8 KB से कम का है तो एक ही पेज में सेव हो जाएगा। अगर उस हो सकता है एक पेज पे मल्टीपल लोगों की इंफॉर्मेशन सेव हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेटा सेव होता है एसक्यूएल सर्वर इंटरनली। सेकंड थिंग मैं बताता हूँ,
अब आपने क्या किया, इस टेबल पे कोई इंडेक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे मैं टेबल पे गया, इंडेक्स में चेक किया, मेरे इंडेक्स क्रिएटर है 4, ठीक है। तो इंडेक्स के लिए जो इंडेक्स क्रिएट होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है और उसका साइज भी होता है इंडेक्स का। कभी कभी इंडेक्स का साइज एक्चुअल टेबल के साइज से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। क्यों होता है कि इंडेक्स में बहुत सारे हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जैसे कोई यूजर इस पे फिल्टर लगा रहा है, कोई यूजर इस पे फिल्टर लगा रहा है, तो दिस वे, ठीक है। मैं आपको जब वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग समझाऊंगा तब आपके इंडेक्स का साइज टेबल के साइज से कभी कभी ज्यादा होता है, वो एग्जैक्ट आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है, क्यों ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये होता है जो इंडेक्स पेज में सेव होगी इन्फॉर्मेशन। पेज क्या होता है, कंटेंट 8 KB डेटा एंड इंडेक्स पेज, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबली टेस्ट और टेस्ट, जैसे आपने सिंपल आप टेस्ट सेव कर रहे हो तो उसके लिए टेस्ट हो गया, इमेज सेव कर रहे हो तो इमेज पे एसक्यूएल सर्वर ने कुछ नए कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे इमेज सेव करने के लिए इमेज पेज बना दो एक, जिससे आपको डेटा रिट्रीव हो जाएगा फास्ट वे में, ठीक है। जैसे डेटा पेज क्या करता है, डेटा रो विथ ऑल द डेटा एक्सेप्ट टेस्ट, देखिए एक्सेप्ट के टेस्ट का बोला है, एंड टेस्ट इमेज, और ये क्या एन वेर केयर एंड आल्सो इट बी रो इन सेट टू द ऑन, इन सब में ये डेटा सेव होता है डेटा पेज में, ठीक है। इंडेक्स पेज कंटेंट इंडेक्स एंट्री, इंडेक्स पेज होता है जो इंडेक्स पेज की एंट्री को कंटेन करता है कि कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। सर मोस्टली कौन से पेजेस यूज होते? मोस्टली देखिए, अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए मेरे इस छोटे से लोकल डेटाबेस में सभी के सभी डेटा पेज यूज हो रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा यूज होते हैं, मोस्टली सभी जो होते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वो हम जैसे उसमें कुछ इंसर्ट करते वो ऑटोमेटिकली वो पेज क्रिएट होता है क्या? यस यस, ऑटोमेटिकली। ओके। देखिए हमें कुछ अलग नहीं करना पड़ता उसके लिए? कुछ नहीं करना होता, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन, ओके। ठीक है। ये देखिए एक छोटे से डेटा पे देखिए, ये मेरा हेडर पेज टाइप 15 है, एडवेंचर वर्क विद टेबल्स, देखिए टेबल रिजल्ट है, ये मेरा डेटा पेज हो गया, बीसीएम पेज हो गया, ग्लोबल मैप ग्लोबल एलोकेशन पेज हो गया, एससीएम पेज हो गया, शेयर एलोकेशन पेज हो गया, डीसीएम पेज हो गया, बीसीपी पेज हो गया, ये सभी पेज हैं, 8 या 9 टाइप के पेज होते हैं, ओके। ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 नहीं है, मे भी हो सकता है कुछ अलग पेज आईडी हो, डिपेंड करता है, बट ये मोस्टली इतने टाइप के पेज होते हैं, ठीक है। और पेज, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल चलता हूँ, क्यों पहले ये आपको ये पेज समझ में आ जाए ना, फिर आपको बताता हूँ। आपको ये समझ में आए पेज क्या होते हैं, ठीक है। सर अब मैं आपको, हाँ बोलिए। हाँ समझ में आया पेज। अब आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको जीएम बताता, ग्लोबल एलोकेशन मैप बता रहा था, तो ये क्या कहते हैं, जीएम जो जीएम पेज होते हैं वो किसकी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन रखते हैं एक्सटेंड एलोकेशन की। एक्सटेंड एलोकेशन मतलब जो 8 KB का कंटेनर होता है उसकी एलोकेशन क्या है, कैसे हुआ है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। GM हैज ए बिट फॉर एवरी एक्सटेंड, मतलब इफ द बिट 1 देन करस्पॉन्डिंग एक्सटेंड इज फ्री, ठीक है। एक बिट है और एक्सटेंड है, लेकिन बना को रखा है हार्ड ड्राइव ने मल्टीपल एक्सटेंड, बट उसमें बिट एक ही सेव है तो वो फ्री है, अभी उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इफ द बिट 0 देन करस्पॉन्डिंग इज यूनिफॉर्म और मिक्स्ड, मतलब एक ही टाइप का डेटा सेव करना है तो हम एक ही सिंगल टाइप के एक्सटेंड में रखते हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा सेव करना है तो उनको करते हैं मिक्स एक्सटेंड, ये अभी नेक्स्ट नीचे डिस्कस करूंगा। यूनिफॉर्म मतलब सिर्फ एक ही टाइप का, यूनिफॉर्म मतलब मैं इसमें एक एक्सटेंड बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ डेटा पेज रखे हैं, ठीक है, और एक मैं एक्सटेंड बना रहा हूँ मिक्स, जिसमें डेटा पेज भी हैं, इंडेक्स पेज भी हैं, जीएम पेज भी हैं और अदर पेज भी हैं, ठीक है। Okay. देखिए डेटा पेज हो गया, अगर मैं यूनिफॉर्म मतलब जो मेरा एक्सटेंड है सिर्फ डेटा पेज के लिए यूज हो रहा है, ये पूरा Yes, sir, पूरा समझ एक्सटेंड। गया। अगर मैं मिक्स एक्सटेंड बना रहा हूँ तो मेरा डेटा पेज भी उसके अंदर होगा, इंडेक्स भी उसके अंदर होगा, टेस्ट और इमेज पेज भी उसके अंदर होगा,
और साथ साथ में ग्लोबल मैप ये सब पेज भी इसके अंदर रख सकते हैं। और एक जीएम के अंदर 64,000 एक्सटेंड की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है जीएम। ग्लोबल एलोकेशन मैप बोलते हैं। जो अभी मैं कमांड रन करा रहा था ना जीएम, ये देखिए ये एक 64,000 एक्सटेंड की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है एक जीएम। ठीक है, ऐसे ही एससीएम जिसको शेयर बोलते हैं, शेयर ग्लोबल एक्सटेंड। दिस एससीएम पेज रिकॉर्ड विद एक्सटेंड आर करंटली बीइंग यूज्ड इन मिक्स एक्सटेंड। मतलब ये बताता है जो हमारा ये एक्सटेंड है मिक्स यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म में यूज हो रहा है, शेयर का मतलब ये शेयर हो रहा है। कैसे शेयर हो रहा है? ये सिर्फ एक ही की इंफॉर्मेशन रखता है, किसी यूनिफॉर्म की, और ये रखता है किसकी, शेयर की। शेयर भी मिक्स एक्सटेंड की इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, SCM पेज रिकॉर्ड विथ एक्सटेंड आर करंटली बीइंग यूज मिक्स एक्सटेंड। मतलब ये क्या रखता है, ये इंफॉर्मेशन उसकी रखता है कि कौन सा एक्सटेंड अभी मेरा मिक्स एक्सटेंड की तरह यूज हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, के बाद आपको बताते हैं कि कौन सा पेज PFS है ना, फ्री पेज है। कंटेन अबाउट पेज एलोकेशन एंड फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन द पेज। मतलब ये बताता है कि 8 KB में से मेरे डेटा पे 2 KB रिटर्न है या 1 KB रिटर्न है या मेरा 6 KB रिटर्न है, कितना KB फ्री है, पेज PFS बताता है। जिसको बोलते हैं शॉर्ट में पेज PFS। फॉर इफ द 1 बिट करस्पॉन्डिंग एक्सटेंड, रुको सॉरी, पेज कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज एलोकेशन एंड फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन द पेज। मतलब ये क्या करता है कि एक पेज है 8 KB का, ये पेज मेरा 8 KB का ना, ये इस पेज का क्या करता है कि इसमें से मैंने सपोज मैंने क्या किया, इस 8 KB में मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने लिखा, ये लिखा 1 पे कमल और 2 पे लिखा मैंने दीपक। ठीक है, तो ये मेरा मैक्स से मैक्सिमम लेगा। ये ले लिए 2 KB, इसने ले लिए 2 KB। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जस्ट, हो सकता है ये आपका KB से भी कम ले रहा हो। और ये थर्ड अभी क्या है, इसके पास कितना हो गया टोटल 8 KB का, अभी इसने 4 KB फिल हुआ, तो अभी 8 KB में से इसके पास 8 KB में से इसके पास 4 KB की अभी फ्री स्पेस है। तो एसक्यूएल सर्वर इस 4 KB को वेस्ट तो जाने नहीं देगा। ठीक है, तो 4 KB अभी इसके पास रिमेनिंग फ्री है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारा ये रखता है कौन सा, पेज फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन ये रखता है। दूसरा होता है इंडेक्स एलोकेशन मैप, IAP बोलते हैं जिसको, कि कौन सा इंडेक्स हमारा यूजर है। इफ पेज कंटेन अबाउट एक्सटेंड यूज्ड बाय द टेबल और इंडेक्स पर एलोकेशन यूनिट। मतलब ये रखता है कि कौन सा अबाउट एक्सटेंड है जिसका टेबल और इंडेक्स की तरह यूज हो रहा है, यूज्ड बाय टेबल और इंडेक्स पर एलोकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ बोरिंग लग सकता है, डिटेल्स इतना ज़्यादा इसके अंदर जाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको कुछ इसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं बता सकता मैं आपको इसमें कुछ भी। हाँ, आपको यहाँ दिखा सकता है, बोलिए। सर ये ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर सब करता है क्या, या हमें कुछ करना पड़ता है नहीं, इसमें? हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है एसक्यूएल सर्वर के, हमें ये कुछ भी क्रिएट नहीं करना होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि भैया 8 एक्सटेंडेड कितने KB का होता है, और मैं चाहता हूँ मेरा एसक्यूएल सर्वर फास्ट रिटर्न करे, तो आप पेज साइज कितना मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हो। तो आप बोल दो सर मैं चाहता हूँ मेरा पेज साइज 8 KB हो जाए, 4 KB हो जाए या 64 KB हो जाए। ठीक है, तो मैं उसको रिटर्न फास्ट कर सकता हूँ ना। ओके, पर आइडियली हम क्या वैल्यू रखते सर? आइडियली 8 KB हमारा तो नहीं, आइडियली हमारा क्या होता है ना, एक पेज 8 KB का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम क्या रखते हैं, डिफॉल्ट एज इट इज सेटिंग रखते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत हैवी लोड होता है जिन सर्वर पे, तो हम इंफ्रा टीम से बोल के पेज साइज चेंज कराते हैं, उसके बाद हम
एसक्यूएल सर्वर में वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं कि अब हमारा पेज साइज 8 KB का लेगा। ठीक है, पहले वो हार्ड डिस्क लेवल पे चेंज करते हैं। ओके ठीक है, कैसे चेंज करते, देखिए हाउ टू चेंज डिस्क, हाउ टू चेंज डिस्क पेज साइज 4 KB टू 8 KB। ओके नेटवर्किंग का कुछ पार्ट है, डिफरेंट भी होते हैं और चेंज करने के नाम। एसक्यूएल और आप एसक्यूएल सर्वर में करोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। You cannot change it the ports region of the efficient address table, but you can do the हार्ड डिस्क का पेज का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके हिसाब से LSCN नंबर ये सब चेंज, पहले हमें हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा। अप टू 60 KB तक जा सकते हो आप, 4 KB से 60 KB तक जा सकते हो आप। ठीक है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट देखिए, बाय द डिफॉल्ट पेज साइज फिर भी 48 KB। ये आपको थोड़ा सा देखिए, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसमें लिखा है। बहुत से लोग बोलते नहीं मुझे चेंज करना है, ब्लॉक साइज 1096 MB या KB करना है, तो ये चेंज करा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 32 बिट्स समथिंग सेव करेगा, इसमें डेटा रिटर्न फास्ट होगा। ओके, दूसरा मैं आपको जो एक्सेंट बता रहा था, एक यूनिफॉर्म होते हैं, एक मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, आप देखिए, आपको इस डायग्राम से समझाते हैं, देखिए ना, ये देखिए ना, यहाँ पे ये दिखा ना मिक्स एक्सटेंड, टेबल 1 इंडेक्स 1, टेबल 1 इंडेक्स 2 टेबल 2। इसमें क्या है, टेबल भी की डेटा भी सेव हो रहा है और इंडेक्स भी सेव हो रहा है, बट यूनिफॉर्म में देखिए सिर्फ टेबल का डेटा सेव हो रहा है ना। ओके तो उसमें मिक्स का मतलब डेटा भी सेव होता है, इंडेक्स भी सेव होता है और अदर रो इन्फॉर्मेशन भी सेव होती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स एक्सटेंड। यूनिफॉर्म को बोलते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट सेव करता है वो। ऑल द 8 पेजेस, मतलब 8 के 8 पेज में, एक एक्सटेंड में 8 पेज होते हैं और 8 के 8 के पेज में आपको एक जैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव होगी। देखिए यहाँ पे टेबल 1 टेबल 2 टेबल 1 टेबल इसमें सब में टेबल सेव हो रही है, तो मतलब 8 के 8 पेज पे एक यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। मिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, टेबल भी सेव हो रही है, उसी एक्सटेंड में एक पेज में तो टेबल होगी, दूसरे पेज में इंडेक्स हो गया, फिर इंडेक्स हो गया, फिर टेबल होगी, फिर इंडेक्स हो गया या टेबल होगी, जो भी व्हाटएवर हो वो सेव होता है इस तरीके से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक ही इसमें एक्सटेंड में सेव हो रहा है, उसको यस ये उसको बोलते हैं मिक्स एक्सटेंड बोलते हैं। जो आपका सिंगल ऑब्जेक्ट सेव होता है, जैसे मान लो अगर मैं इसमें सब में इंडेक्स सेव कर रहा हूँ, तभी ये मेरा सिंगल वो कहलाता, यूनिफॉर्म एक्शन कहलाता। ठीक है, और सब सिंगल टेबल हो रहा है, ये हो गया आपका एक्सटेंड और टेबल का कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा मैं और लिटिल बिट डिस्कस करूंगा। ये मेरे पास है, देखिए टेबल आपको बताता हूँ ना, ये टेबल है, जैसे आप ये टेबल का इंफॉर्मेशन सेव कर रहे, पेज नंबर 1 है, n-1 है, कोई भी पेज है, जैसे सेल्स ऑर्डर टेबल है, मैं इसमें ये डेटा डाला हूँ, इस तरीके से सेव कर रहा हूँ डेटा। ठीक है, इस तरीके से पेज पहले n-1 पेज पे ये इन्फॉर्मेशन है, n पेज पे n-1 कोई भी वो पेज हो सकता है। ठीक है, पेज n पे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। ठीक है, अब क्या ये एग्जैक्ट इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सेव होती है एक्सटेंड में। ये एक्सटेंड होता कुछ नहीं, फिजिकली कुछ नहीं होता, लॉजिकल ग्रुपिंग होती है एक्सटेंड, सिर्फ लॉजिकली ग्रुपिंग होती है। 8 KB का इनपुट, जैसे आप किसी सर्वर पे इनपुट आउट करते ना, इनपुट आउटपुट इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, तो क्या होता है कभी कभी हमारा इंसर्ट स्लो होता है, तो हम क्या करते हैं एक्सटेंड का साइज बढ़ा के या पेज का साइज बढ़ा के पैरेलली इंसर्ट अपडेट होता है इसमें डेटा को। और देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल समय लेता हूँ, जैसे ये डेटा पेज होगा, पेज एक्सटेंड होगा। देखिए आपका जो एक मैंने बताया था आपको ना
कि किस तरीके से पेज होता है। एक पेज होता है 8 KB का, देखिए 96 बाइट इसने रिटर्न किए, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था जो फ्री स्पेस है, PFJSS से बताता, जो मैंने आपको बताया था ना कि इतना फ्री स्पेस है। पहली रो पे मेरी 4 सेव है, दूसरी पे 30 और 2 और 1, इस तरीके से सेव होता है। एक्सटेंड में ये गया पेज, इस पेज में ये इन्फॉर्मेशन है, इस पे ये इन्फॉर्मेशन सेव है, इसमें इतना फ्री है। ओके। ठीक और है, हेडर में क्या है सर? उसमें पेज हेडर में हेडर उसकी 96। पेज हेडर में उसकी 96 GB है, अपने लिए रिटर्न करके रखता, अपने लिए खुद के लिए रिजर्व करके रखता है 96 बाइट। क्या करता है, ईच पेज बीइंग 96 बाइट हेडर सो इन एवर इमेज यूज स्टोर सिस्टम इन्फॉर्मेशन। मतलब ये सीधा है कि इस पेज में मेरी 10 टेबल की इन्फॉर्मेशन हो गई या नेक्स्ट टेबल की, तो उसमें इंडेक्स का वो होता है ना हेडर इन्फॉर्मेशन, कि इस पेज में मेरा एक्सटेंड है, मिक्स एक्सटेंड है, या इसमें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सेव है। ओके। ठीक है, और रो ऑफसेट क्या है? रो ऑफसेट कौन सा, सॉरी, वो लास्ट पेज का नीचे वाला पोर्शन। यस। ओके, रो ऑफसेट, जैसे ये देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है, एक एक्सटेंड में कितने पेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज है ना। इस एक पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो रो ऑफसेट है। पहली रो जो हमारी है ना, रो टोटल 4 है, 4 3 2 1। पहली रो मेरी पहली सेव है, दूसरी तीसरी चौथी। सबसे पहले ऐसा ही तो होगा कि पहला डेटा सेव हो गया, 1 होगा, पहली रो फिल होगी टेबल में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं। तो इस तरीके से रो ऑफसेट नंबर है ये। अगर नीचे से देखा जाएगा तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको और चेक करूंगा, मैंने इतना डिटेल्स इसका देखा नहीं, मुझे नीड नहीं पड़ी इसकी। अच्छा ओके। ठीक है। ये वो ये सब फ्री पेज कैसे चेक करते हैं, इंडेक्स एलोकेशन क्या है, बैकअप लॉग क्या है, डिफरेंशियल चेंज मैप, ये बाद में देखेंगे। टेम्प टीबी का मैंने आपको बता ही दिया मूव करने का। ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल में ये सब चीजें थ्योरेटिकल है, मैंने ये पेज बता दिया, पेज आर्किटेक्चर, ट्रैकिंग फ्री स्पेस इन पेज, जो अभी दिखा रहा था ना कि एक पेज TFS। पे कितना, हाँ TFS, कितना फ्री स्पेस है उस पर्टिकुलर पेज पे। अब आपको मेन चीज बताना है कि लॉग फाइल फुल हो जाती तो आप कैसे इसको फिक्स करोगे। ठीक है, अगर आपका हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम लॉग फाइल, दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है, लॉग फाइल अगर फुल हो जाती है तो दो तरीके हैं। कैसे, जैसे सपोज मान लो मैंने इस डेटा फाइल पे गया और फाइल ग्रुप में गया, और इस लॉग फाइल का साइज मैंने जो कहा, इसकी लॉग फाइल, इसका साइज मैंने क्या किया, मैंने इसका लॉग फाइल का साइज 2 MB कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये 2 MB फिल हो गया और मेरे पास अभी कोई स्पेस ही नहीं बचा। ठीक है, और ये ऑटो ग्रेथ होता रहेगा और ये 100 GB पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके आप डेटाबेस पे जाओ, राइट क्लिक करें, डेटाबेस पे गए। ठीक है, और यहाँ पे जाइए फाइल्स में, ये दिख रहा है डेटाबेस सिंक फाइल्स। ठीक है, आप लॉग फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेटा की जगह सिलेक्ट कीजिए लॉग फाइल्स, और इस लॉग फाइल को देखिए ये 39 MB है ना, मैं इसको सिंक करके बताता हूँ आपको। इसको मैं 2 MB करता हूँ। ठीक है, प्राइमरी डेटा फाइल को ना, लॉग फाइल जो बने ना, तो ये मेरी 2 MB की हो जाएगी। इस तरीके से हम लॉग फाइल के स्पेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरा फाइल का साइज देखिए ना कितना MB है, 1 MB। ठीक है, लॉग फाइल इसका साइज कितना है, ये देखिए ना, मैंने इसका लॉग फाइल का साइज 2 MB दिया, उसने डिफॉल्ट 3 MB लिया। थोड़ा सा लिटिल मच हम 1 MB ज्यादा दे के रखते हैं ना ऑटोमेटिकली, ताकि कोई स्पेस इशू ना करे। जैसे मान लो कोई ट्रांजेक्शन रनिंग हो रहा है तो मेरा उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक सर है, मैंने अभी किया था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लॉग फाइल का इशू आया था, लॉग स्पेस फुल हो गया था। तो मैंने राइट क्लिक करके वो रेप्लिकेशन लॉग वेट रीयूज करके कुछ तो आ रहा था और वो श्रिंक ही नहीं हो रहा था। उसका मैं एक्चुअली क्या हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था आपका सिंक, मैं बताऊँ, आपका रेप्लिकेशन चल रहा था उस डेटाबेस पे। ठीक है, ओके।
तो रेप्लिकेशन का मतलब एक टेबल का डेटा दूसरी जगह जाता है, कॉपी होता है ऑटोमेटिकली, तो वो रेप्लिकेशन होता है, लॉग शिपिंग होती है, या ऑलवेज ऑन या मिररिंग कॉन्फ़िगर की है। जब आप HATR करते हो तो डेटा रिटर्न होता है, ठीक है। ओके, वहाँ पे तो कुछ वो HADR नहीं था, वो इंट सर्वर था। ओके, तो फिर मैं हाँ। आपको दो तरीके बताऊँ। आपका देखिए यहाँ पे जाइए, प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले चेक कीजिए, जो आपका ऑप्शन है ना, ये रिकवरी मोड सिंपल होगा आपका, हाँ, ठीक है, सिंपल था। सिंपल था। और उस सिंपल होने के बाद आपने कभी भी उस डेटाबेस का बैकअप नहीं लिया होगा आज तक, हाँ, हाँ। है ना। तो जब आपने बैकअप भी नहीं लिया, सिंपल भी है, तो एसक्यूएल सर्वर क्या बोलता है, इनफ इंटेलिजेंट होता है, वो बोलता है कि आपका रिकवरी बोर्ड सिंपल है, तो इस केस में आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले आप डेटाबेस का बैकअप लीजिए, फर्स्ट टाइम एटलीस्ट एक बार तो बैकअप लीजिए आप अपने डेटाबेस का। ओके। बैकग्राउंड से वो चेक करता रहता है कि जो नया डेटाबेस क्रिएट किया है और मैंने उसका रिकवरी मोड सिंपल कर दिया और एक भी बार बैकअप नहीं लिया, तो एसक्यूएल सर्वर बोलता है कि आपका लॉग फाइल हमेशा इंक्रीज करता रहेगा और आपको सिंक भी नहीं करने देगा वो। मैंने क्या किया, मैंने वो 2 बार चेक पॉइंट चलाया, फिर बाद में वो श्रिंक हुआ। चौक पर देखो, तो उस केस में आपका क्या हो रहा होगा, उस केस में आपके ट्रांजेक्शन रनिंग होंगे, इंसर्ट कमांड चल रही होगी, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ ना चल रहा होगा उस डेटाबेस पे पर्टिकुलर। विदाउट उसके ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास कमांड है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो लॉग फाइल को सिंक करने का तरीका बताता हूँ ना मैं आपको। देखिए, मैं यहाँ पे गया DBA TSQL सिंक लॉग फाइल, लॉग सर, लॉग फाइल श्रिंक करते वक्त हमको कुछ एक्टिव कनेक्शन देखने पड़ते क्या? हाँ, वही मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको चेक करना चाहिए कि कोई आपका एक्टिव कनेक्शन तो नहीं उस डेटाबेस में। अगर एक्टिव होगा तो वो पहले उसको चेक पॉइंट रन कराएगा ना। हाँ, तो मैंने क्या किया कि वो श्रिंक ही नहीं हो रहा था, तो मैंने डबल टाइम चेक पॉइंट किया, फिर बाद में वो श्रिंक हुआ। देखिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एसपी हेल्प डीबी से चेक करता हूँ उस डीबी का लॉग फाइल कहाँ रखी है, आपको पता होना चाहिए। लॉग फाइल का फिजिकल फाइल नेम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं सिंक करता हूँ, तो सबसे पहले डेटाबेस का रिकवरी मोड अगर फुल है मेरा, तो मैं सिंपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सिंपल करने के बाद क्या होता है कि वो चेक पॉइंट इजीली रन हो जाता है, ठीक है। ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डीबीसी सिंक कमांड चलाता हूँ। ये स्पेशली डेटाबेस को सिंक करने के लिए कमांड होती है। फिर मैं उसका रिकवरी मोड जैसे फुल है वैसे एज इट इज फुल कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ मेरे लॉग फाइल का साइज क्या है, ठीक ओके। है। मतलब अभी मैंने जो किया वो ठीक था क्या? हाँ, वो आपने सही किया, लेकिन आपको सबसे पहले आप रिकवरी मोड आपका सिंपल था ना डेटाबेस हाँ, का ना, तो हाँ, हाँ, आप वो सिंपल ही था। वो सिंपल इसलिए था ताकि आप लॉग साइज को इंक्रीज नहीं कराना चाहते ज़्यादा से ओके, ज़्यादा। जो ओके, डेटाबेस नॉन क्रिटिकल हों, टेस्टिंग एनवायरनमेंट के हों, जिनको आप डेटा डिलीट भी हो जाए और उनको कोई ऐसा इशू ना हो, तो आप उनको सिंपल रिकवरी मोड में रख सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आपका लॉग साइज इंक्रीज नहीं होगा, ठीक ओके, है। क्यों नहीं होता, रीजन यही है बियॉन्ड कि सिंपल रिकवरी मोड में कोई रिकॉर्ड सेव नहीं करता, इंसर्ट अच्छा। का, अपडेट का, डिलीट का कोई वो रिकॉर्ड खाली सेव। टेस्टिंग के लिए यूज़ करते ना वो सब? हाँ, टेस्टिंग ओ पर्पज। सिंपल ओ रिकवरी मोड का मतलब ये है कि जैसे आपने जो भी डेटा रिटर्न कर रहे हो, वो हर एक की इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी। जैसे आपका ओ इंसर्ट करोगे डेटा इंसर्ट होगा, बट इंसर्ट हुँ, के लिए जो आपने कमांड लिखी थी ना, उसकी हुँ, इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी कि ओके, इंसर्ट इस पे चला था, अपडेट इस पे इस टाइम चला था, डिलीट इस पे इस टाइम चला था, ओके, ओके। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं। मैं एक कमांड को शेयर कर, देखो मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में हाँ, क्या करते हैं। जैसे मेरा डेटाबेस अभी देखिए ना, अभी कंट्रोल Z कंट्रोल C
इस डेटाबेस इस सर्वर पे जाता हूँ मैं और मैं चेक करता हूँ। मेरा ये एक डेटाबेस है एडवेंचर वर्क 2012, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट अब आपको पता होना चाहिए ये मेरा डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस की मेरी फाइल लोकेशन लॉग फाइल कहाँ रखी है। अभी तो आपकी एक ही लॉग फाइल थी तो आपने सिंक कर दी ना, मल्टीपल लॉग फाइल होती हैं। जैसे मेरे केस में एक लॉग फाइल ये रही और एक लॉग फाइल मेरी ये रही। कौन सी लॉग फाइल कहाँ है? लॉग फाइल 1, लॉग फाइल ये भी मेरी लॉग फाइल है ना। जो नल है ना वो लॉग फाइल है ना, नल। तो 2 लॉग फाइल है। अब मेरे को दोनों सिंक करनी है और मेरे को साइज चेक करना है, ठीक है। तो मैं इसका साइज चेक किया, इसका साइज देखिए 8 कितना है, इसका 8196 8192 KB, इसका भी 8 सपोज फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इसी लॉग फाइल का साइज सिंक करना है। देखिए 2112 है ना, इसका 819 KB है। तो आप इसी फाइल को पिक कीजिए इसको और आपने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और डेटाबेस का मैंने नाम डाला, ठीक है। कंट्रोल C, यस दिस, और इसको मैंने सबसे पहले रिकवरी मोड सिंपल किया, अल्टर डेटाबेस सिंपल, ठीक है। और मैं 1024 KB की जगह मैं इसको 500 या मैं इसको इसको करता हूँ 200, ठीक है। फॉर एग्जांपल 200 KB या 200 MB जो भी होगा ना, डिपेंड, इसको चला देता हूँ। मेरी सिंक हो गई। डिफॉल्ट साइज करंट साइज आपका ये है, ये इसने मैंने मिनिमम सेट 1024 MB रखा है तो इसलिए दिखा रहा। अब मैं आप दोबारा से चेक करता हूँ इसको कितना साइज सेट हुआ मेरा। ये इसका मिनिमल साइज था, इससे ज़्यादा सेट नहीं हो रहा क्योंकि मिनिमम मैंने इतना ही दे के रखा है। अगर ये मान लो सपोज मेरा 400, ये फाइल साइज मेरा सपोज कितना हो जाता, 1000 GB हो जाता, तो आप इसको 200 MB या इतने तक सिंक कर सकते थे, मिनिमम इतने तक। सर 1 मिनट, आप वो टास्क में जाके दिखाइए ना, मेरे को एक डाउट था उसमें, टास्क थ्रू यस एडवेंचर वर्क के टास्क में। अच्छा सिंक का, हाँ श्रिंक का GUI मेथड से फाइल्स। हाँ जी, फाइल्स पे हाँ जाए आप, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए लॉग फाइल्स। हाँ, लॉग फाइल किया मैंने आप और मल्टीपल फिर लॉग, ये श्रिंक एक्शन में ना मैंने रिलीज अनयूज स्पेस सिलेक्ट किया था। रिलीज अनयूज, हाँ इस फर्स्ट वाला ऑप्शन ना, हाँ हाँ तो वो सही है। सही है। तो ये ऑप्शन कब सिलेक्ट करते, मतलब कैसा सिलेक्ट करते? देखिए एक बोलता हूँ, ये एक है कि रिकॉग्नाइज पेज बिफोर रिलीजिंग अनयूज स्पेस सिंक फाइल। दूसरा होता है रिलीज, मतलब रिलीज का मतलब होता है जैसे आपने डेटाबेस में 10 रो इंसर्ट की, ठीक है, 10 रो, तो 10 रो को इंसर्ट होने में टेम्परेरी उसने लॉग फाइल में 4 GB स्पेस ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो 4 GB एग्जैक्ट तो 4 GB का डेटा है नहीं, 10 रो तो ज़्यादा 2 KB की होंगी या 5 KB की होंगी। तो जो अनयूज स्पेस होता है वो ऑटोमेटिकली, जब सिंपल रिकवरी मोड होता है तो ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होता, ठीक है। और बल्क लॉग में जब तक आप बैकअप नहीं लोगे एक बार तब भी नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वैसे तो ये ऑटोमेटिक एसक्यूएल सर्वर रिलीज करता है, चेक पॉइंट रन कराता है, बट हम कभी नहीं होता। तो आपने उसने चेक पॉइंट मैनुअल रन कराया था ना, हाँ तो इसी वजह से आपका एनयूजी स्पेस फ्री हो गया। ये डेटाबेस क्या होता है कि हार्ड डिस्क से फ्री नहीं होता, एसक्यूएल सर्वर से फ्री हो जाता है। तो हार्ड डिस्क से फ्री करने के लिए आपको इसको रिलीज करना पड़ता है। ओके ठीक है। तो ये लॉग फाइल का ये ट्रैकिंग फ्री होगी। अब हम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस स्नैपशॉट, कैन आई टेक टुमारो, ये 3 थिंग्स। यस सर। क्योंकि इसमें मुझे ये बताना पड़ेगा कैसे ऐड फाइल मैंने बता दिया, ऐड फाइल ग्रुप, बट स्कीमा मैं आपको बताऊंगा। स्कीमा से पहले मैं आपको स्कीमा बता दूंगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी वाला टॉपिक लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें ना। हाँ चलेगा। और इसका आप प्रैक्टिकल कीजिए और कोई भी डाउट हो ना, छोटे से छोटा भी, आप उसको पूछिए विदाउट हेजिटेशन। हो सकता है मुझे उस टाइम पे ना बता पाऊँ, लेकिन अगले दिन आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है चलेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन था, हमारे इसमें अलर्ट सेट होता है,
लॉग हाँ फाइल अगर फुल हो जाता है तो हाँ अबव 90% जब जाता है तब अलर्ट आता है, ठीक है। तो हाँ जब लॉग स्पेस फुल का अलर्ट आता है, हम लोग डीबीसीसी कमांड है, डीबीसीसी सीक्वल का वर्क लॉग स्पेस करके कौन से डेटाबेस पे लॉग फाइल फुल हुआ है अबव और उसका 90 हुआ है, हाँ, और वो चेक करते ये हैं। तो उसके बाद यस फिर जब पता चलता है कि वो जो 90% के अबव हुआ है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए हमने? देखिए, आपका अगर 95% से 5 हो गया, आप सबसे पहले डीबीसीसी परप लॉग स्पेस चलाते हैं, तो सभी डेटाबेस के लॉग साइज का इंफॉर्मेशन देता है और उसमें ये भी बताता है कि किस डेटाबेस की लॉग साइज 10 जीबी की है, उसका 10 जीबी का 90% फुल हो गया, ठीक है। 10 जीबी का 90% मतलब 9 जीबी, ठीक है, यस, 9 जीबी फुल हो गया और सिर्फ 10 जीबी फ्री। तो उस केस में आप पहले से प्रोकेशनली उस लॉग फाइल को फिक्स इशू को फिक्स कर सकते हो। क्यों हो रहा है? जैसे किसी ने क्या किया, सिलेक्ट कमांड चला दी, बहुत बड़ी सिलेक्ट चला दी और वो यूजर बोल के सेशन को क्लोज करना, तो वो लॉग फाइल में स्पेस को ग्रैब करता रहेगा ऑटोमेटिकली। या किसी ने क्या किया, सिलीली इंसर्ट चला दी या अपडेट, गलत अपडेट चला दिया गलती से, ओके, तो वो अपडेट करना था उसको एम्प्लॉय आईडी 1, बस उसने एम्प्लॉय आईडी नहीं लगी, अपडेट टू ऑल कर दिया, ठीक है। तो वो तो पूरी जितनी बड़ी टेबल होगी अपडेट होती रहेगी, तो लॉग फाइल भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक। तो उस केस में हम उसको वो करते हैं कि डीबीसीसी परप लॉग से चेक कर लेते हैं। और दूसरा रीजन और भी ये हो सकता है कि आपके उस एनवायरनमेंट में इंडेक्स रीबिल्ड हो रहे हो, ठीक है, ओके, या हैवीली इंसर्ट चल रहा हो उस डेटाबेस में, हैवीली अपडेट चल रहा हो, हैवीली डिलीट चल रहा हो, तो ऐसे केस में ठीक है। हमने उनका जो भी टास्क है वो कंप्लीट होने तक वेट करना चाहिए कि क्या देखिए, एक्शन लेनी चाहिए? अगर अगर उनका इंसर्ट और अपडेट और डिलीट कमांड है तो हमें वेट करना चाहिए। अगर उनका सिलेक्ट कमांड है तो यूजर को एक बार यूजर इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, इस डेटा इस सर यूजर ने कैसे इस पता वाले चलेगी? मैंने बताया था एसपी सिलेक्ट सिस प्रोसेस, किस यूजर ने कौन से डेटाबेस पे क्या क्वेरी चलाई है। ओके, अच्छा, और मैंने वो एक्टिव रनिंग क्वेरीज बताता है ना? सर हाँ, आप एक्टिव दिखाएंगे रनिंग क्या क्वेरी भी। प्लीज वो मैं क्वेरी आपको एक और रन चीज करके? यस मैं बताता हूँ, देखिए। देखिए, ये एक तो दो तरीके से तो देखिए, मैंने बता दी आपको, देखियो, सॉरी, जैसे मैं यहाँ गया, अभी मैंने कुछ चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए आपको बताता हूँ। जैसे मेरा एडवेंचर वर्क है, ठीक है, एडवेंचर वर्क को मैं दूसरा सेशन ओपन करता हूँ, उसमें चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सनल टेबल लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, और मैंने क्या किया, ठीक है, और इसको चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको चला दी, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिगिन ट्रान TRAN बिगिन ट्रान लिख के, और मैं इसको क्लोज नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलाता हूँ क्या, डिलीट कमांड या अपडेट कमांड, तो मेरा ये ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होगा। जब तक कमिट नहीं होगा तो मैं यहाँ पे जैसे मैं चेक करूंगा, सिलेक्ट डॉट सिस डॉट प्रोसेस, मेरा DBID इक्वल टू मेरा कौन सा है, एडवेंचर, ठीक है। तो ये मुझे बता देगा कि मेरा कौन सा सेशन चल रहा है, रनिंग कौन सा नहीं चल रहा। ये देखिए, इतने बता दिए। देखो सेशन आईडी मेरी कौन सी चली, 55 56 57 इस डेटाबेस पे चल रही है इतनी, ठीक है। और कौन सी कमांड चला रहा है, अब जैसे
जैसे मैंने क्या चलाया था, ये चलाया था ना 59 पे, 59 की कमांड पता करनी है तो मेरा सबसे पहले आप सेशन आईडी 59 सर्च कीजिए, 59 कौन सी, ये अब जाइए इस पे राइट ऐसे जाइए, इसका वो होता है यहाँ पे एसक्यूएल हैंडल होता है एक, ये इस वाले को कॉपी कीजिए, कॉपी, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एग्जैक्टली आपको बता देगा आपने क्या क्वेरी चलाई है। ठीक है, जैसे मैं पेस्ट करूंगा और मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि यूजर ने क्या चलाया। देखिए यूजर ये कमांड चला रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। ठीक है, ओके सर, वो ये इंफॉर्मेशन सिलेक्ट क्वेरी जो है वो उधर नहीं आती क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys.sys प्रोसेसेस में? ये वाली नहीं आती, ये इससे आपको सेशन आईडी पता चल जाएगा। ओके उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, मैं आपको एक, आपने नाम सुना होगा एसपी हु इज एक्टिव, यस सेम Who is active? ये जो क्वेरी है सर, ये हमें सिलेक्ट नहीं सॉरी डीबीसीसी इनपुट बफर इन ब्रैकेट सेशन आईडी डाल के भी पता चलती है ना, यस बट वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक। हाँ यस बट वो आपको लास्ट बफर देगा, लास्ट इनपुट बफर। इसमें आपको ऑल द सेशन पता चल जाएंगे, प्रीवियसली जो कौन सा चला है और अभी कौन सा। डीबीसीसी इनपुट बफर देता है सेम, बट क्या होता है ना, वो सभी सेशन नहीं देता, वो सिर्फ लास्ट जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगा वो देगा, लास्ट बफर में ट्रांजैक्शन होगा वो देगा। हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन होगा ना उस टाइम पे लास्ट बफर में, उसके में ओके ये नहीं देगा 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 बार, वो देगा 71। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप इसको यूज किया। उसके बाद मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसका नाम है एसपी हु इज एक्टिव। वो एग्जैक्टली बता देता है कि किसने क्या इंफॉर्मेशन चलाई है, कौन सा यूजर। आपको सिर्फ इतना लिखना होता है EXC SP अंडरस्कोर हु इज। अभी इसमें मैंने डाला नहीं, वो डालना पड़ता हु इज ACTIV लिखेंगे ना, आप इसको इतना रन कराएंगे ना तो पूरी इंफॉर्मेशन देगा, कौन से यूजर ने ब्लॉकिंग की है, लॉकिंग की है, किस यूजर ने क्या कमांड चलाई है, कितने टाइम से चल रही है, कितने टाइम में कंप्लीट होगी, और इसमें क्या लॉकिंग लग गया, क्या ब्लॉकिंग है, क्या डेड लॉकिंग है, एवरीथिंग बताता है वो। ओके ठीक है, मतलब जो एक्टिव अभी चल रहे क्वेरीज सर्वर पे यस वो यस बताते यस वो मैं पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए बताया या पूरे एसक्यूएल सर्वर का? पूरे एसक्यूएल सर्वर के सभी डेटाबेस के लिए। वो ये है मेरे पास है एसपी हु इज एक्टिव, ये रहा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमें, मैं आपको रियल टाइम बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने किसी सर्वर पे इसको रन नहीं किया, तो मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी, और मैं इसी सर्वर पे रन करा देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छा, पहले क्रिएट करना, ये स्टोर्ड प्रोसीजर है ना? हाँ इसको क्रिएट करना पड़ता है ना। ओके जैसे मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा ना, इसको मैं जाऊंगा अल्टर डेटाबेस यूज, मास्टर में करना चाहो तो मास्टर में कर दो, मैं जनरली मास्टर में ही करूंगा ना। उससे क्या होगा, ये मेरा ऑल द डेटाबेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, इसको रन कराता हूँ, अगर मेरे को एरर, ये मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूज मास्टर करता हूँ। ठीक है, और EXEC SP और हु इज ACTE। ठीक है, और मैं इतना चलाता हूँ बस। ठीक है, जब मैं इतना चलाऊंगा, देखिए मेरे में अभी कोई सेशन रनिंग नहीं है करेंटली। देख कितने टाइम से चल रहा है, सेशन आईडी क्या है, एसक्यूएल टेस्ट जो आपको यहाँ पे मैंने एसक्यूएल हैंडल से निकाल के दिया था ना, ये वाला वो आपको डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगा ना। ठीक है, जो मैंने आपको ये निकाल के दिया था एक सेशन से 59 से था ना, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं चलाना। किस यूजर ने चलाया, वेट इंफॉर्मेशन कितना है, कितना CPU यूज हो रहा है, कितना टेम्प DB एलोकेशन हो रहा है, कितना टेम्प DB करंट यूज हो रहा है, कौन सा ब्लॉकिंग सेशन है, कितने रीड राइट हो रहे हैं, कितना फिजिकल रीड हो रहा है, कितना लॉजिकल रीड हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें, कौन से होस्ट ने हमने चलाया, कितने % कंप्लीट हो गया है, ओपन ट्रांजैक्शन है,
रनिंग है, वेटिंग है, या फिर थ्रेड के लिए वेट कर रहा है। डेटाबेस का नाम क्या है, प्रोग्राम किससे चलाया, हो सकता है आपने चलाया, हो सकता है यूजर ने यूआई से चलाया है। ठीक है, ओके स्टार्ट टाइम क्या था, लॉगिन टाइम क्या था, रिक्वेस्ट आईडी, ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है, ओके ओके तो जस्ट मतलब इसको ये क्रिएट करना होता है। ओके सर, इसको हमने अगर अपने पर्पस के लिए इसको कुछ परमिशन वगैरह लगता है क्या अगर क्रिएट किया तो? ऐसा कुछ नहीं है ना? वैसे तो परमिशन का पूछ लो, ये वैसे तो प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, इसको कोई इशू नहीं। आप अगर यहाँ सर्च करोगे ना एसपी हु इज ACTIV एक्टिव, लेकिन कुछ लोग इसको अवॉइड बोलते हैं, नहीं हम इसको यूज नहीं करें। ओके वैसे मैंने तो अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट करके रखा है। ठीक है, ओके ओके ये लिखा है ना एसपी एसक्यूएल सर्वर मॉनिटरिंग स्टोर प्रोसीजर, सिंगल स्टोर प्रोसीजर से आप बहुत कुछ मॉनिटर कर सकते हो। हाँ वही। ठीक है, तो मैं तो अपने यहाँ यूज करता हूँ रियल टाइम। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ये डाउनलोड करोगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा और आप उसको डाउनलोड कर लो ये। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन कर सकते हो, मैंने तो प्रीवियस वर्जन डाला है, बट लेटेस्ट चाहो तो लेटेस्ट कर। अब तो ये एजोर के लिए भी आ गया ना, एजोर सपोर्ट करने लगा, क्यों ना इन्होंने ओके मॉडिफाई करते ना, ओपन सोर्स है तो लोग मॉडिफाई करते रहते हैं इसको। ठीक है, और कोई डाउट टिल नाउ? हाँ, कल हम इसको लेंगे, क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं ओके यूजिंग TSQL लेंगे। वैसे तो मैंने हम यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करना बता दिया डायरेक्टली, राइट हाँ क्लिक करो डेटाबेस पे, बट हम TSQL के थ्रू बताएंगे, स्क्रिप्ट के थ्रू डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। किसी डेटाबेस को आपको बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है तो आप उसमें कोई डिप्लॉयमेंट जा रहा है, आपको नहीं पता कि हो सकता है कोई डिप्लॉयमेंट में गड़बड़ भी कर सकता है, तो उस डेटाबेस की फ्रिक्वेंट कॉपी जो बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम डेटाबेस स्नैपशॉट बनाते हैं। ओके ठीक है, आपको नहीं पता ओके सर, कल आपका कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। करते हैं फिर। यस, हम कल करते हैं इसको क्रिएट ओके सर। डेटाबेस, उसके बाद हो सकता है कि कल हम थोड़ा सा लॉगिन का पार्ट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है चलेगा सर। चलेगा सर, ओके, कल लेते हैं सर। हम ठीक। कल सुबह 8 बजे करते हैं लॉगिन, मीन्स कॉल। हाँ, कल सुबह 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके ओके ठीक है, चलो। मिस नेहल से पूछती हूँ एक बार, वो भी करने वाली है ना कल, मैं पूछती हूँ उससे। ठीक है, आप पूछ लीजिए, मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से। ओके ओके चलेगा। ठीक है, ठीक है चलिए चलेगा बाय। सर। बाय। ओके बाय सर, सर। थैंक यू सर। और बाय कुछ सर। भी डाउट हो ना आप फ्रिक्वेंटली पूछिए, क्यों जितना पूछोगे तो हो सकता है कि मेरे को कोई चीज़ ना पड़ रही हो मैंने, तो मैं भी ठीक है। उसको सीखने को मिल जाएगा कुछ आप लोगों से। हाँ चलेगा सर। ओके सर, ठीक ओके है, ठीक। चलिए थैंक यू सर। बाय। बाय। इट्स ओके, बाय।